Hi dear friends, I'm Professor Vayam Khan and we are discussing the subject of machine tools, and in today's video we are going to continue with the indexing mechanism of milling machine. So in this part we will discuss the differential type of indexing used on milling machine to divide the circumference of a workpiece into different divisions. Now we have understood the mechanism of simple indexing, as well as we have understood the mechanism of compound indexing. So simple indexing, you can index up to 50 uh, parts of a workpiece, or you can divide the parts into 50 equal parts. You can divide the workpiece into 50 equal parts by using simple indexing. So if you want to go for more divisions, then you have to use compound indexing, in which you rotate the crank in one motion, and you add another motion of uh, indexing plate along with the crank. So you index twice in compound indexing. You can simply say you index twice, or you rotate the crank and index plate two times to get the number of divisions. Okay, so this all things are done by using, you can say, manual. By you do it manually. Okay, you use lock pins for locking the index plate, then you unlock that lock pin and then you rotate the crank along with the index plate by some number of holes in the selected hole circle. So likewise you do it by complete operation by manual method. Okay, now this differential indexing, this whole operation is done by using gears which is connected to dividing head spindle. So differential indexing जो है ये सेम है कंपाउंड इंडेक्सिंग के जैसा, एक्सेप्ट दैट जो इंडेक्स प्लेट है जिसको हम घुमाते हैं ये हम टर्न करते हैं बाय यूजिंग गियर्स। ठीक है, सो जैसा हमको हर बार कंपाउंड इंडेक्सिंग में हर बार वो जो इंडेक्सिंग प्लेट है उसको घुमाना पड़ता था, तो वो यहाँ पर नहीं है। आप एक बार गियर सेट कर दो, उनको जो भी मोशन देना है वो मोशन दे दो, इट विल परफॉर्म द इंडेक्सिंग ऑपरेशन ऑटोमेटिकली। Okay, so because the index plate movement is caused by the spindle movement, only one indexing procedure is required. So because this index plate movement is caused by spindle movement, तो जैसा स्पिंडल घूमेगा वैसा हमारा प्लेट भी घूमेगा। ठीक है, तो हमारा जो इंडेक्सिंग है ये क्या होगा, सिर्फ हमको एक बार करना होगा इंडेक्सिंग, एंड आफ्टरवर्ड्स इट विल be divided into the equal number of parts by using the gear train। जो gear train रहेगा उसकी मदद से ही हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग परफॉर्म करेंगे। so the gear train is between the dividing head spindle and index plate। so gear train is present between the dividing head or spindle and the index plate, and it provides correct ratio of movement between the spindle and index plate। जो भी हमारा स्पिंडल है उसका मूवमेंट और जो हमारा इंडेक्स प्लेट है इसका मूवमेंट, इसके बीच में करेक्ट रेशो प्रोवाइड करने का काम ये गियर ट्रेन करता है। तो ये गियर ट्रेन कैसा दिखता है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे। तो ये फिगर जो है इट शोज अ डिवाइडिंग है सेटअप ऑफ डिफरेंशियल इंडेक्सिंग। डिफरेंशियल इंडेक्सिंग जो है इसका ये एक सेटअप है। तो जो हमारा क्रैंक है, क्रैंक इज टर्न फॉर प्लेन इंडेक्सिंग। जो भी हमारा ये क्रैंक है, ओके, सो यू कैन सी हियर दिस क्रैंक पिन, दिस इज क्रैंक पिन, सो दिस इज योर क्रैंक। सो ये जो क्रैंक है ये प्लेन इंडेक्सिंग के लिए हम क्या करते हैं, टर्न करते हैं। दस टर्निंग द स्पिंडल गियर, ये हमारा स्पिंडल है, इसका जो गियर है आप गियर बी देख सकते हो, इसको घुमाते हैं। सो ये जो गियर बी है जब ये घूमेगा, so it will be connected with the compound gear and idler to drive the gear। so ये compound gear से connected है और ये इनसे connected है। so आप देख सकते हो कि ये B gear A के साथ और A C के साथ में connected है। so that makes them a gear train। ये gear train बनाते हैं ये सभी gears मिलके। so जैसे हम हमारा स्पिंडल घुमाएंगे वैसा हमारा गियर घूमेगा, गियर घूमने की वजह से ये कंपाउंड गियर घूमेगा, कंपाउंड गियर घूमने की वजह से हमारा आइडलर टू ड्राइव द गियर गियर वो भी घूमेगा। 10 टर्निंग द इंडेक्सिंग प्लेट, जो ये है ये क्या करेगा, इस इंडेक्सिंग प्लेट को भी घुमाएगा। तो हमारा मोशन कुछ इस तरीके से वापस से इस प्लेट के ऊपर आ रहा है। सो दैट इज़ हाउ गियर ट्रेन ऑफ दिस मैकेनिज्म वर्क्स।
इसमें एक ड्राइवर है, एक ड्रिवन आप देख सकते हो, गियर विच इज़ फिक्स्ड टू बी वेल देख सकते हो, साथ ही साथ में गियर स्टड फिक्स्ड टू हेड स्पिंडल आप देख सकते हो। ओके, सो जो भी मैन्युफैक्चरर है इसके टेक्निकल मैनुअल में इसके इंस्टॉलेशन की प्रोसीजर उसके साथ देता है। तो ये जो गियर ट्रेन है या ये जो भी हमारा कंपाउंड इंडेक्सिंग हेड है, ठीक है, सो ये हम कंपाउंड इंडेक्सिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम डिफरेंशियल इंडेक्सिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में मैकेनिज्म तो ऑलमोस्ट सेम है, खाली कंपाउंड में हमको क्या करना है कि इसको मैन्युअली करना है और डिफरेंशियल में हम गियर ट्रेन की मदद से करेंगे। अब इसका एक और डिफरेंशियल का एडवांटेज ऐसा है कि ये जो भी हम मोशन करने वाले हैं, ठीक है, सो जनरली ये जो डिफरेंशियल इंडेक्सिंग है ये इस्तेमाल की जाती है ऐसे डिविजन्स के लिए, ऐसे नंबर ऑफ डिविजन्स के लिए जो हमारे होल सर्कल पर या जो हमारे इंडेक्स प्लेट पे जो होल सर्कल्स हैं, इन होल सर्कल्स पर ये डिविजन्स प्रेजेंट नहीं होगी तब। ओके, फॉर एग्जांपल एक आधा डिवीजन, एक आधा प्लेट है हमारा जिसके ऊपर हमारे पास में से सपोज जो होल सर्कल है वो प्रेजेंट है, से इट इज़ 24, 26, 28 या जो भी नंबर्स प्रेजेंट रहेंगे। तो इन नंबर्स के अलावा अगर हमको कोई एक नंबर के लिए इंडेक्सिंग करना है तो वो हमारे कंपाउंड इंडेक्सिंग पे अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, तब हमारे डिफरेंशियल इंडेक्सिंग का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल यहाँ पर हम कर सकते हैं। सो इट इज़ जनरली यूज्ड for the divisions which are not present on the you can say whole circles, the whole circles which are not present on the indexing plate। इसके लिए आप ये क्या कर सकते हो, इंडेक्सिंग कर सकते हो। ठीक है, क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, यस। सो now let us understand how to divide or how to use this differential indexing. So suppose we want to index 57 divisions। अब 57 डिविजन्स की जो होल सर्कल है या जो डिविजन्स है ये हम डायरेक्टली नहीं बना सकते, ठीक है। सो हमारे पास में इसका सर्कल का ये भी प्रेजेंट नहीं रहेगा, होल सर्कल भी प्रेजेंट नहीं रहेगा हमारे पास में, इससे रिलेटेड रहेगा 56 रहेगा और 56 के बाद 60 अवेलेबल रहेगा। सो ना 57 अवेलेबल है हमारे पास में, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशियल इंडेक्सिंग इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमको 57 करना है डिवीजन, बट हमारे पास होल सर्कल 57 का अवेलेबल नहीं है, तो कैसा करेंगे। सो वी विल सेलेक्ट अ नंबर विच इज़ ग्रेटर और लेसर देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिविजन्स। जैसे मैंने आपको बताया 57 करना है, हमारे पास 56 अवेलेबल है और 60 अवेलेबल है, तो दोनों में से कोई भी एक नंबर हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक तो लेस वाला लो या फिर ज़्यादा वाला लो, तो 57 से हम 56 भी ले सकते हैं या 60 भी ले सकते हैं। तो सपोज़ हमने 60 लिया, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो वर्क पीस है उसको कितने डिविजन्स में डिवाइड कर रहे हैं, 60 डिविजन्स में। तो हमारा फॉर्मूला क्या बताता है 60 डिविजन्स करने के लिए, प्लेन इंडेक्सिंग का फॉर्मूला क्या बताता है, द नंबर ऑफ इंडेक्सिंग मोमेंट यानी इंडेक्सिंग क्रैंक मोमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, 40 अपॉन यन। यन क्या है, हमारा डिविजन्स है। तो अभी हम इस फॉर्मूले की मदद से क्या करेंगे, जो 40 अपॉन 60 है वो कर लेंगे। सो 40 अपॉन 60 है, तो इस 40 अपॉन 60 को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 14/21 के फॉर्म में हमने इसको लिखा है, 14/21। ये देखो, ये 14/21 कहाँ से आया, ओके। सो 40/60 जब मैं यूज़ करता हूँ, 40/60 जब मैं करता हूँ, सो इट बिकम्स 2/3, ये हो जाता है 2/3, ओके। सो 2/3 जब ये होता है तो हम क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर को 3 को क्या करना चाहेंगे, जो हमारे पास में अवेलेबल होल सर्कल है उसमें कन्वर्ट करना चाहेंगे, राइट। सो जब मेरा 2/3 हो जाता है ये 40/60, तो हम इस डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, होल सर्कल में कन्वर्ट कर इसको हम जो हमारा अवेलेबल होल सर्कल है उस नंबर में हम क्या करना चाहते हैं, इस 3 को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हमारे पास अवेलेबल होल सर्कल है 21, तो मैं क्या करूँगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 को। सिमिलरली जब मैं डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ
तो वैसे ही मैं न्यूमरेटर को भी 7 से करूँगा, इसलिए ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21। सो 14/21 क्या हो जाएगा मेरा प्लेन इंडेक्सिंग का मेथड हो जाएगा, बराबर है। सो इस प्लेन इंडेक्सिंग में हम क्या बताते हैं कि वी हैव टू मूव दी वी हैव टू मूव बाय 14 होल्स, 14 होल्स से हमको मूव करना है, मूव बाय 14 होल्स इन विच 21 होल सर्कल ऑफ इंडेक्स प्लेट। तो जो भी इंडेक्स प्लेट है इस पे जो 21 सर्कल की होल सर्कल है, इसमें 14 होल्स क्या करना है आपको मूव करना है। ओके, so that is how you do your plane indexing, right? Now second step is done here. Now we have to go to third step. Now we want to divide it into 57 divisions, we don't want to divide it in 60, बराबर है। so ये जो 3 एक्स्ट्रा डिविजन्स है इसको हम कैसा हैंडल करेंगे? so how it is handled? it is handled by the gear ratio. इसको हम किससे हैंडल करते हैं? वही हैंडल इट बाय गियर रेशो। हम गियर रेशो ऐसा रखते हैं कि जिस वजह से हमारे जो डिविजन्स हैं वो भले ही 60 होल सर्कल पे हो, वो डिविजन्स कितने होंगे? 57 होंगे, भले ही वो हमारे 21 होल सर्कल पे रहो या इट इज़ डिफाइंड एज 60 डिवीजन। 60 डिविजन्स के हिसाब से हम डिफाइन ज़रूर कर रहे हैं, बट हम 60 डिविजन्स नहीं कर रहे हैं, हम कितने कर रहे हैं? 57 कर रहे हैं। तो ये किससे करेंगे? गियर रेशो से। जो गियर ट्रेन आपने देखे ना अभी, उस गियर ट्रेन का जो गियर रेशो है, इससे हम क्या करते हैं? उसको मेंटेन करते हैं। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले? सो वी विल फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल गियर रेशो। कैसा फाइंड आउट करेंगे गियर रेशो? सो यू हैव टू subtract the number of divisions that you have selected from the given divisions. okay, so 60 minus 57 हम करेंगे यहाँ पर। so 60 minus 57 करने पर हमको जो भी है वो आंसर मिलेगा। अब साथ ही साथ में इसको हम हमारे 40/60 मानिए जो हमारा 2/3 का जो रेशो है, जो 14/21 का रेशो हमको मिला है, उससे भी क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो वो मल्टीप्लाई करने पर हमको जो आंसर आ रहा है इट इज़ 3 इंटू 40/60, सो इट इज़ योर 2/1। ओके, 2/3 था, 40/60 इसको मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, तो ये 3 हो गया कैंसिल, बचा कितना है? 2/1। ओके, ये जो 2/1 है ये हमारा गियर रेशो है। ये क्या है? हमारा गियर रेशो। सो द न्यूमरेटर जो ऊपर है वो इंडिकेट करता है स्पिंडल गियर। कौन सा गियर लगाना है? 2 नंबर का गियर हमको लगाना है। स्पिंडल गियर में 2 रहेगा, और जो डिनोमिनेटर है वो इंडिकेट करता है हमारा ड्रिवन गियर। तो ड्रिवन गियर क्या रहेगा? फर्स्ट रहेगा। तो फर्स्ट गियर पे लगाना है, जैसे आप गाड़ी के गियर चेंज करते हो वैसे ही यहाँ पर हम गियर चेंज करेंगे। तो सेकंड गियर में डालना है हमको स्पिंडल को, और फर्स्ट गियर में डालना है ड्रिवन गियर को। ठीक है, सो कहाँ है हमारा स्पिंडल गियर? ये है हमारा स्पिंडल गियर बीच में, और यहाँ पर है हमारा ड्रिवन गियर। ओके, उसको डालना है सेकंड गियर में, फर्स्ट गियर में। ओके, तो ये होने के बाद में क्या करना है? सेलेक्ट द 2 gears that have a 2:1 ratio, फॉर एग्जाम्पल 48 टूथ गियर एंड 24 टूथ गियर हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। सो 48 टूथ गियर वाला गियर सेलेक्ट करो, किसके लिए? हमारे स्पिंडल के लिए, और 24 वाला करो हमारे ड्रिवन के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेशो 2:1। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? if selected number is greater than the actual number of divisions required, जो हमने सेलेक्ट किया था नंबर, जो 60 हमने सेलेक्ट किया है, अगर ये बड़ा है हमारे एक्चुअल डिविजन से, तो क्या करना है? यूज़ 1 और 3 आइडलर्स इन द सिंपल गियर ट्रेन। इसके अंदर हमको क्या यूज़ करने हैं? आइडलर्स का इस्तेमाल करना है। ओके, इसमें सिंपल गियर ट्रेन में आइडलर्स डालने हैं। इफ़ सेलेक्टेड नंबर इज स्मॉलर, यूज नन और 2 आइडलर्स, कोई भी आइडलर यूज मत करो या फिर 2 आइडलर्स यूज करो। द रिवर्स इज ट्रू फॉर कंपाउंड गियर ट्रेन, ये रिवर्स भी हम कर सकते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन के लिए। सिंपल गियर ट्रेन है तो सिंपल के लिए हमको ऐसा जाना है, आइडलर में क्या करना है? 1 या 3, यानी ऑड नंबर ऑफ क्या डालने हैं? आइडलर्स डालने हैं सिंपल गियर ट्रेन में। अगर कंपाउंड गियर ट्रेन है तो इसमें उल्टा करना है हमको। अगर सेलेक्टेड नंबर बड़ा रहेगा तो सेलेक्टेड नंबर में हम क्या करेंगे? इवन नंबर का आइडलर डालेंगे, 2 या 0 डालेंगे। ठीक है, और अगर हमारा स्मॉलर है तो इसमें हम 1 या 3 डालेंगे। ओके, सिंस द नंबर इज ग्रेटर in this example, use 1 or 3 idlers. Now how the rotation should be done?
So now turn the index crank. Turn the index crank 14 holes. कितने holes करना है? 14 holes in the 20 hole circle, okay, of the index blade. As the crank turns, जैसे क्रैंक घूमेगा, स्पिंडल घूमेगा, स्पिंडल घूमने से गियर ट्रेन घूमेगा, गियर ट्रेन के साथ में जुड़ी हुई इंडेक्स ब्लेड भी क्या होगी? ओके, स्लाइटली फास्टर घूमेगी इंडेक्स क्रैंक से, जिस वजह से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस कंपाउंड गियर ट्रेन का इस्तेमाल करके, इस गियर ट्रेन का इस्तेमाल करके हम जैसा हमारा क्रैंक घुमा रहे हैं उसके साथ क्या कर रहे हैं, हमारे इंडेक्स प्लेट को भी ऑटोमेटिकली घुमा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस व्हाट, गियर ट्रेन. सो दैट्स वाई इसमें जो इंडेक्स प्लेट है उसको घुमाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारा गियर रेशियो इस्तेमाल किया जा रहा है, ओके, जो हमारे इंडेक्स प्लेट को क्या कर रहा है, घुमा रहा है. सो दैट इज़ हाउ यू डू डिफरेंशियल इंडेक्सिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. ओके, सो इसके अलावा भी और इंडेक्सिंग में मॉडिफिकेशंस अवेलेबल है, बट दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. So, if you have any queries, you can ask me. We will stop here. Thank you so much. Please stay safe, stay healthy, and keep learning. Thank you.